One other is their consumer equilibrium. So these three core topics are there. So today we are going to revise this one. So revenue means the total sale receipts obtained by a seller after selling a given amount of output in the market at a given price. I repeat, total sale receipts which are received by the seller when he sells a given amount of output, a given quantity of output. At what? At a given price. Price पता है, given quantity is being sold, so then whatever money is received by him, that is called total sale receipt. या same thing is called revenue. या उसी को कहते हैं simply total revenue. One and the same. Three concepts are there. One is called total revenue, one is average, one is marginal. As usual, as we are doing in microeconomics, concept may be different, but these three concepts are same in all the topics. Average utility, marginal utility, total utility, TR, AR, MR, TC, MC, AC, same things are there, but meanings are different. So total revenue means total sale receipts. What is the formula? Price per unit into quantity. क्या आएगा? Sold or produced? Sold. In case of this revenue, we have to mention the quantity sold. So price into quantity. Then second is average revenue. Average revenue means price per unit of the commodity. Means if we divide the total receipt या total revenue divided by number of units sold, मैंने 100 rupees earn किए after selling 5 things. What is my average revenue? 100 over 5, 20 rupees. मतलब per unit on an average 20 rupees का सेल कर दिया. So per unit price of the commodity is called average revenue. और फॉर्मूला बनाए तो TR divided by Q. यहाँ TR की जगह पे अभी क्या होगा? प्राइस इंटू क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, तो Q and Q gets cancelled, बचेगा प्राइस. तो AR is nothing else but the price of the commodity. कंज्यूमर के व्यू पॉइंट से the same thing is called प्राइस. हम जब बोलते हैं खरीदने वाले लोग तो हम उसको प्राइस कह देते हैं. बेचने वाला पर्सन जब उसको एनालाइज करता है वो अपने एंगल से बोलता है, he calls it एवरेज रेवेन्यू. ठीक है. Then third one is marginal revenue means change या addition to total revenue when one more unit of output is sold by the seller. Additional unit को बेच के whatever is obtained, मैंने 5 units बेचे, मेरी इनकम हुई 100 rupees. 6 units बेच दिए, इनकम हो गई 120 rupees. What is the marginal revenue? 20. How have we come to know? 120 minus 100. ये जो 20 है that is the change. Due to which reason? क्योंकि एक extra unit सेल किया था. तो एक्स्ट्रा और एडिशनल यूनिट की सेल से whatever additional change comes in total revenue, that is called marginal revenue. Then we have done there are two market forms are there major. One is perfect, second is imperfect. Under imperfect further we divide in monopoly and monopolistic form. Okay? Perfect competition में many times this has been revised. This price is same because of homogeneous product या because of perfect substitute, same price is there. So at same price total revenue increases at a constant rate or marginal revenue and average revenue they become equal to each other, and diagrammatically this is parallel to x-axis. Many times we have done this. Okay? Second one is monopoly. Now in case of monopoly, as we have done earlier, monopoly means that form of market in which there is single seller and the product which is being sold by him, that product does not have very close substitutes. Means the monopolist, the person, single seller has full control over the market. But when he sees he keeps the price high, so very less number of consumers come to him. Then he thinks about reducing the price. थोड़ा सा कम करता है तो 2 consumers आ जाते हैं, और reduce करता है तो 3 आ जाते हैं. And in this manner, as he keeps on reducing the price, the number of consumers increases. बढ़ते जाते हैं. Because if he remains stiff, tough, अपने डिसीजन पे रहता है, चेंज ही नहीं करता कुछ भी, तो देन ही कैन नॉट कंपेयर द बायर्स टू कम. कोई आदमी अपने प्राइस को तो ऊपर नीचे कर सकता है, किसी को घर से जाके तो नहीं पकड़ के ला सकता है कि आपने मेरी दुकान से सामान खरीदे. कंपल्शन इज नॉट पॉसिबल. बट सो हाउ इज दैट डन? बाय अट्रैक्टिंग द कंज्यूमर्स. तो उसके लिए ही हैज टू रिड्यूस लिटिल बिट प्राइस. सो व्हेन ही रिड्यूसेस मोर पीपल कम टू हिम. सो इन दैट वे एवरेज रेवेन्यू मींस प्राइस कीप्स ऑन डिक्लाइन, कम होता जाता है. So when AR declines, so that means what type of shape we will get? This type of AR curve will be there. है तो ये लाइन है, बट बोलने में कर्व भी बोल देते हैं. So downward sloping. तो here question can be in which market form this average revenue curve slopes downward. अभी तक जितना हमने किया तो we will say under monopoly. अगला टॉपिक नहीं किया. Under monopoly average revenue decline. So if AR declines,
MR follows the same footsteps, उसी को फॉलो करती है, but change is more sharp, the change is sharper than the average level. ज्यादा स्पीड से गिरती है MR की वैल्यू, तो जब ज्यादा स्पीड से कम होती है तो वो लाइन जो है that comes below this. I am not writing the tables, सारा डिटेल में नहीं कर रहे, already this is done. Mainly it is being told. So this type of AR and MR are there. Then third market form is there. एक और चीज कर देते हैं. One more thing is there. If we want to study the relation between here output here PR, AR and MR. If question comes कि what is the relation between among all different these revenue curves. So if we plot the points as we have done in that hypothetical table, मान के जो चलते हैं, तो this type of shape of PR comes to us. Now what do we see? Firstly, it is increasing. Okay, at what rate? At a slow rate, at a diminishing rate. ऐसी flat सी shape आती है, जिसका मतलब slow rate से increase होती है. Then it becomes maximum. Then it starts declining. And following this, corresponding to this, if we see, then TR is increasing, both AR and MR are falling. दोनों की वैल्यू कम होती है. When TR is maximum, corresponding to that, AR is still positive. अभी भी x axis के ऊपर है, still positive, and MR here that's x axis मतलब यहाँ जीरो के इक्वल है, तो वैल्यू is equal to zero. When TR declines, diminish होती है, तो at that time AR is still positive, fall कर रही है, but it is still positive. Are you getting my point? फॉल करने का मतलब डाउनवर्ड जा रही है, बट एक्सिस के ऊपर है, मीन्स इसकी वैल्यू पॉजिटिव है. बट व्हाट हैपेंस टू एमआर, ये यहाँ पे एक्सिस के नीचे आता है. तो ये एक्सिस आपने 10th क्लास में की हुई, ये नेगेटिव एक्सिस होता है, मीन्स दिस इज द नेगेटिव पार्ट ऑफ एमआर कर्व. ठीक, दैट मीन्स कि रिलेशन क्या बना, व्हेन टीआर इज इंक्रीजिंग बोथ एआर एमआर फॉल्स, बट रेट ऑफ फॉल इन एमआर इज मोर. जो ज्यादा स्पीड से कम होता है वो नीचे लाइन आएगी. When TR maximum, both are falling, but AR is still positive, MR is equal to 0. When TR falls, TR declines, then AR is falling but still positive, but MR is negative. ये रिलेशन. ठीक, उसके बाद थर्ड था हमारा ये जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन का, ये आपको पहले से पता है. दिस इज द शेप ऑफ TR, दिस इज द शेप ऑफ AR एंड MR. और ये कॉन्स्टेंट रेट से ना, 1 यूनिट 10 रुपीज का, 2 यूनिट्स 20 के, 3 यूनिट्स 30 के, बिकॉज सेम ही प्राइस है, सेम प्रोडक्ट. Then third market form is under imperfect, जो second market form है, otherwise that is monopolistic competition. So in monopolistic competition there are many sellers, buyers are as usual they are always large in number. Here we have to pay attention to number of sellers. So large number of sellers are there, and the product which is being sold by them, that product has very close substitute, means there is slight product differentiation. All products are competing with each other. जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स होते हैं वो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स होते हैं. आपके पास एक जेल पेन है, एक ब्लू, एक इंक वाला पेन है, एक बॉल पेन है. ये तीनों जो पेन्स हैं काम तो लिखने का ही करते हैं, बट दे आर कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट्स. एक दूसरे का मुकाबला कर रहे हैं कि ये लेना है कि दूसरा लेना है कि तीसरा लेना है कि कोई और लेना है. तो जो चीजें जिनके लिए हमें सब्स्टिट्यूशन हम लोग कर सकते हैं, और दे आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, या उसी को कह देते हैं दिस क्या बोले अभी, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट उनको बोला जाता है. So under a monopolistic competition, many competitive products are there. So if one seller increases the price, then buyers will leave his product, उसको छोड़ देंगे, they will go to other products और सस्ते मिल रहे. But on the other side, if seller reduces the price, getting my point, reduces the price, then many buyers may come to him. उनको comparatively other products लगेंगे महंगे, और इस जिसने कम कर दिया प्राइस वो लगेगा सस्ता या चीप प्रोडक्ट लगेगा. चीप वो क्वालिटी वाइज नहीं, चीप मतलब प्राइस वाइज सस्ता लगेगा. सो उसके पास बायर्स आ जाते हैं. बट क्योंकि वो सेलर ही इज वर्किंग अंडर मोनोपोलिस्टिक फॉर्म ऑफ मार्केट जिसमें लार्ज नंबर है, तो ही इज नॉट एबल टू केटर टू द नीड्स ऑफ ऑल द बायर्स. जितने लोग उसके पास आ जाते हैं उसके पास इतना सामान नहीं है कि सबको दे सके. थोड़ा सा तो वो मैनेज कर लेगा, जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना तो वो दे देगा कम प्राइस के ऊपर. बट बहुत सारे लोगों को मैनेज नहीं कर सकता. वाई? बिकॉज उसका जो स्केल या उसका जो लेवल ऑफ आउटपुट है वो कम है. क्यों कम है? क्योंकि वो एक बड़ा छोटा सा सेलर है अमंग ए वेरी लार्ज मार्केट. जैसे पूरे यूनिवर्स में आप या मैं कहूँ कि बस आई एम द ओनली वन,
देखते देखो ये सोच के देखो ये कितनी फुलिशनेस की बात है, इतना बड़ा यूनिवर्स, इतने सारे उसमें सब कुछ है, प्लांट्स है, एनिमल लाइफ है, सब कुछ है, तो हम ह्यूमन बींग्स में कहें कि बस मैं ही हूँ, दैट इज द मोस्ट फुलिश एटीट्यूड, एक छोटा सा पार्ट है हम लोग। तो ऐसे ही जो लार्ज स्केल मार्केट है, ये मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, उसमें बहुत सारे सेलर्स हैं, तो इंडिविजुअल सेलर कोई खास अपना उसका रोल नहीं हो पाता है, क्योंकि कम साइज के ऊपर वो काम करता है, छोटे लेवल के ऊपर काम करता है, तो इस करके वो सबकी नीड को पूरा नहीं कर पाता, बट जितना भी कर पाता है तो उसके हिसाब से फिर उसकी जो एवरेज वैल्यू कर्व है दैट बिकम्स मोर इलास्टिक, फ्लैटर शेप में आ जाता है कि अगर प्राइस बढ़ाता है तो उसके सेल फायर्स चले जाते हैं, प्राइस रिड्यूस करता है तो और सेल फायर्स उसके पास आ जाते हैं, तो फ्लैटर इन शेप, इलास्टिसिटी इज मोर। ये एआर की कर्व है इन द सेम मैनर एमआर और एआर का सेम ही रिलेशन है, जो चल रहा है डाउनवर्ड है तो ये भी डाउनवर्ड है, ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे स्टीप स्लोप इज देयर, हियर फ्लैटर स्लोप इज देयर। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स एंड सब्स्टिट्यूट्स है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट इज नॉट अवेलेबल, दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज शोन बाय द मोनोपोलिस्ट और ये मोनोपोलिस्टिक ऑपरेशन। ये मीन है यहाँ पे यू विल गेट द क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन रेवेन्यू कर्व्स दैट इज एआर एंड एमआर अंडर, आगे कोई फॉर्म ऑफ मार्केट का नाम होगा, या इन दैट मार्केट इन विच प्राइस रिमेन्स सेम। फिर आपको अपने आप समझना कि अगर ये कहा है कि प्राइस रिमेन्स सेम दैट मीन्स क्वेश्चन इज अबाउट विच मार्केट और फिर कॉम्पिटिशन। अगर ये क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन एआर एमआर अंडर दैट मार्केट इन विच प्राइस इज रिड्यूस्ड, तो नाउ यू हैव टू ऑप्शंस, इधर इट कैन बी मोनोपोली और इट कैन बी मोनोपोलिस्टिक। तो आप नाम दोनों के दे दोगे, उसके बाद मार्क्स के अकॉर्डिंग यू कैन सिंपली एक्सप्लेन अबाउट मोनोपोली, क्योंकि मान लो कि 4 मार्क्स से ज्यादा नहीं आएगा, तो 4 मार्क्स में इट्स नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन होल हार्टेडली अबाउट मोनोपोली एज वेल एज मोनोपोलिस्टिक, सारा लिखना पॉसिबल नहीं है। एक्सप्लेन आप ओनली मोनोपोली का करेंगे, बट यू विल जस्ट मेंशन द नेम्स ऑफ बोथ, मोनोपोली में भी ऐसे होता है, अंडर मोनोपोलिस्टिक भी सेम थिंग हैपेंस। और यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है डिफाइन टीआर एआर एमआर से ड्रॉ डायग्राम या एक्सप्लेन द रिलेशन, या आपको एट द मोस्ट न्यूमेरिकल कैलकुलेट, ठीक है, न्यूमेरिकल विद द हेल्प ऑफ सेम फॉर्मूला, टीआर का फॉर्मूला प्राइस इनटू क्वांटिटी, एआर का फॉर्मूला टीआर डिवाइडेड बाय क्यू, एमआर का फॉर्मूला टीआर एन माइनस एआर एन माइनस 1, या अदर फॉर्मूला डेल्टा टीआर डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू, मीनिंग इज ठीक है। दिस वाज द जिस्ट ऑफ द चैप्टर व्हिच आई होप यू हैव डन, यू हैव रेड, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू सम न्यूमेरिकल्स।